Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online sport program 2020-21. I am Tamkeen Abed from APS Ordinance Road. Today we will discuss about quantum numbers. Right. Students, these are the numerical numbers. These are the set of numbers which completely describes the position of electron around the nucleus. Right, means that describe the position of electron around the nucleus. What does it means? It only means that we already know that in an atom electron may exist in an orbit or a shell. In that orbit we may have some subshells, and these subshells have some kind of orientations, and in these orientations electrons have some type of spin of electron in an orbit. राइट, हमें ऑलरेडी ये चीज़ मालूम है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन मे एग्जिस्ट इन ऑर्बिट or shells, and there's some specific orientation of these subshells, and then in each subshell orientation electron may have some kind of spin. So हमें इन चारों के चारों informations के लिए कुछ code words require है in the form of numbers. These numbers are called as quantum numbers. By the way, like in mathematics we have some equation 2x plus 3 equal to 5. like इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, and x की वैल्यू will give you a number that satisfied given equation. By the way, these four quantum numbers satisfied Schrödinger equation which was proposed in 1926. right, in this equation electron is considered to be a wave particle. right, सो हमने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ ली कि इलेक्ट्रॉन या तो ऑर्बिट में होगा या किसी सब शेल में होगा या उस सब शेल की किसी एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होगा, और उस ओरिएंटेशन में इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक स्पिन भी होती है. तो इन चारों तरह की इन्फॉर्मेशंस को हम चार डिफरेंट तरह के क्वांटम नंबर की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे. सो वी नीड 4 क्वांटम नंबर्स. 4 such numbers. These numbers will completely describe the position of electron around the nucleus, or we can also say that these 4 numbers can satisfy Schrödinger equation which was proposed in 1926. So don't worry about this equation, just remember the name of this equation, Schrödinger equation 1926. Schrödinger was the scientist who proposed this equation. इस equation के लिए हमें 4 तरह के solution sets चाहिए होंगे, and these solution sets are in the form of numbers, and these numbers are principal quantum number, azimuthal quantum number, then we have magnetic quantum number, and we have spin quantum number. इनिशियली हम इन तमाम को टर्न बाय टर्न एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको. ठीक है, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय एन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम एन से शो करेंगे. राइट, सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जहाँ पर एन होगा, दैट एन मीन्स दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एंड व्हाट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या डिस्क्राइब करके देगा? दिस नंबर टेल अस द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल. नाउ वेरी सिंपल पॉइंट जो हम इसको लिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यूज ऑफ एन. एन मे बी इक्वल टू 1, एन मे बी इक्वल्स टू 2, may be equals to 3, 4, 5 and so on up to infinity. right, अब आप इसको बारी बारी कंसिडर करो. n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4. अगर n की वैल्यू 1 है तो इट्स मीन इट्स फर्स्ट शेल. अगर n की वैल्यू 2 आ रही है इट्स सेकंड शेल, n की वैल्यू 3 third shell, n की वैल्यू 4 fourth shell. now first shell, second shell, third shell and fourth shell means अगर n की वैल्यू 1 है इलेक्ट्रॉन इज इन फर्स्ट शेल. इलेक्ट्रॉन अगर n की वैल्यू 3 आ रही है दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इज नाउ एग्जिस्टिंग इन थर्ड शेल. we have the name of these shells. n equal to 1 first shell, we specifically call first shell as
K shell, second shell, L shell, M shell and N shell. So जहाँ पर भी n होगा, that n describes the principal quantum number, and that principal quantum number tell us about the position of electron in a shell, right? Okay, so we must have a next page. Okay, let me fix that page. Okay, fine. Now by knowing the value of n, अभी हमने ये भी चीज़ पढ़ी कि n की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो फर्स्ट शेल है. अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, विच आल्सो आपने चीज़ पढ़ी हुई है, इस इक्वेशन ऑफ रेडियस. अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पुट करूँ, n की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, ये दोनों के दोनों मैथमेटिकल फॉर्म आपने ऑलरेडी पढ़ी है. दिस इज़ फॉर रेडियस एंड दिस इज़ फॉर एनर्जी. अगर n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास रेडियस का आंसर आएगा. अगर मुझे मालूम है कि n की वैल्यू ये है, तो n की वैल्यू यहाँ पुट करके मैं उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस या उसका रेडियस फाइंड कर सकता हूँ. देन n की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ मैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n ओवर हेयर एनर्जी इक्वेशन, आई कैन फाइंड द एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन. Greater the value of r, greater will be greater the number of r, number of n, greater will be the radius. n ज़्यादा होगा, radius भी ज़्यादा होगा. Next we have energy. Greater the number of value of n, greater will be the energy of electron. Right? So हमें पहली चीज़ ये पता है कि हमने जो n है, it's give the location of electron in a given shell. उस गिवन शेल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, वो भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. देन वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस फार्मूला 2n² विच इज़ यूज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन शेल. अगर आपको मालूम है कि n की वैल्यू 1 है, आपने इसमें 1 पुट किया, सॉल्व किया, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स. अगर आपको मालूम है कि n की वैल्यू 2 है, 2² 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 8 इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल. n की वैल्यू 3, 9 मल्टीप्लाई बाई 2, 18 इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल. n की वैल्यू 4, 4 पुट के यहाँ पर 4² इंटू 2, 32 इलेक्ट्रॉन्स इन फोर्थ शेल. सो 2 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल, 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड, 18 इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड शेल एंड 32 इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ शेल. This was the first number, which was the principal quantum number. Next we have azimuthal quantum number represented by L, right? n को हमने पहले पढ़ा about principal quantum number which describes the position of electron in a given shell. Now this number tell us about position of electron in subshell. हमने पहले पढ़ा n which describes the position of electron in shell. Now that electron is in shell, but of that shell that electron may be in any subshell. S, P, D, F. We already know about कि ये 4 टाइप्स के सबशेल हैं. SPDF, SPDF, they are spectroscopic techniques, spectroscopic terms in fact, right? So the first point is कि ये azimuthal quantum number किसी भी इलेक्ट्रॉन को सबशेल में प्रेजेंस के बारे में इंफॉर्मेशन करेगा. L की वैल्यू को सपोज करें हम लोग, L की वैल्यू को हम अगर कंसीडर करें that L may be equal to 0, may be 1, 2, 3, 4 and so on, and last value is n minus 1, one less value than that of principal quantum number. now इसको आप बारी बारी सपोज कर लो. L की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं, L की वैल्यू 1 पुट की, L की वैल्यू 2 पुट की, L की वैल्यू 3 पुट की एंड सो ऑन, राइट. अगर मैंने L को 0 सपोज किया, L इक्वल टू 0 मीन दैट ऑर्बिटल इज S. अगर मैंने L को 1 कंसीडर किया तो L की वैल्यू P मीन्स L इक्वल टू 1 मीन्स P ऑर्बिटल, L इक्वल टू 2 मीन्स D ऑर्बिटल, L इक्वल टू 3 मीन्स S, P, D, you have F orbital. So sequence wise 0, 1, 2, 3, S, P, D, F. L equal to 0, S, L equal to 1, P, L equal to 2, D, L equal to 3, F orbital. Now S stands for is spherical of shape, P is dumbbell, and D is sausage shape, F is quite complicated, so इसको हम draw भी करेंगे later on. S stands for sharp, P is principal, D is diffused, and F, sorry I forget to write, F is fundamental.
the abbreviation of these orbitals. S sharp, P principal, D diffused, and F is for fundamental. Now very important point of this quantum number, and that is relation between n and L. The relation between n and L. N is principal quantum number and L is azimuthal quantum number. Now दोनों को हम एक एक नंबर्स के साथ सपोज करते हैं. जब हम n की वैल्यू 1 सपोज की, इसके अगेंस्ट L की वैल्यू कितनी आ रही है? 0. n इक्वल टू 1, L इक्वल टू 0. n का मतलब 1, ये हमने यहाँ पर 1 लिख दिया. दिस इज़ योर 1. एंड L इक्वल टू 0 मीन्स S सब शेल, तो हमने इसको 1s सपोज कर लिया, 1s ऑर्बिटल, राइट. 1 and S दे आर टू नंबर्स. एक 1 है विच इज़ द वैल्यू ऑफ n, एंड एक S है विच इज़ वैल्यू ऑफ azimuthal क्वांटम नंबर, राइट. सो 1s इज़ बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. 1 is for first orbit and S is for its subshell. n की वैल्यू 2 सपोज की हमने, n की वैल्यू 2. इसकी अगेंस्ट जब हम L की वैल्यू सपोज करेंगे तो हमें उसकी प्रीवियस वैल्यू भी रिपीट करनी पड़ेगी, राइट. जब आप n की वैल्यू 2 सपोज कर रहे हैं तो L को आपने 0 और 1 दोनों कंसीडर करना है. n की वैल्यू जब आपने यहाँ पर 2 सपोज कर ली, सो L की वैल्यू कितनी होगी? 0 भी होगी और 1 भी होगी. L equal to 0 means S, L equal to 1 means P. That means S and that means P. That is 2S as well as 2P. This is 2S as well as 2P. N की वैल्यू 3 सपोज की हमने, L 0 1 2. हमें 3 से छोटी तमाम की तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी है. 3 से लेस 2 है, 1 है एंड 0. देन L equal to 0 is S, L equal to 1 means P, L equal to 2 means D. आप नंबर यहाँ पे लिखें 3 3 and 3, राइट. N को अपने 4 सपोज किया, 4 से लेस नंबर 3 2 1 0 0 1 2 3 0 1 2 3, राइट. L 0 means S, L equal to 1 means P, L equal to 2 means T, L equal to 3 means F. सब में चीज़ रिपीट. L equal to 0 S, 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 L equal to 1 P, L equal to 1 P, L equal to 1 P and so on, राइट. अभी आपने ये तो L की वैल्यू लिखी है ना, यहाँ पे N की वैल्यू भी होती है. N की वैल्यू 4 है, इट मस्ट बी 4S 4P 4D and 4F, right. So here is the formula 2 into 2L plus 1. What is L? This L shows azimuthal quantum number. L की वैल्यू आप यहाँ पर 0 सपोज कर लें, दैट इज S. L की वैल्यू 0 सपोज की, सॉल्व किया, देयर आर 2. दिस फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन सबशेल. अब आप यहाँ पे L की वैल्यू 1 पुट करते हैं, 2 + 1 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन. जब आपने L को 1 कहा तो दैट L इक्वल टू 1 मीन्स P, L इक्वल टू 1 मीन्स P. L को जब आपने 2 कहा, L इक्वल्स टू 2 दैट इज D. जब आपने L की वैल्यू यहाँ पुट की, 2 × 2 4 + 1 5 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 इलेक्ट्रॉन्स. जब आपने L को 3 सपोज किया, S P D एंड नाउ वी हैव F सबशेल. सॉरी अबाउट दिस, F सबशेल. आप 3 की वैल्यू यहाँ पुट करें, 6 + 7 मल्टीप्लाई बाई 2, there are 14 electrons in F subshell. This is used to calculate number of electron in subshell, right. Put the value of 0 over here, put the value of 1, L equal to 1 over here, put the value of 2 over here, put the value of 3, value of L over this. This is used to calculate number of electrons in subshell, right. This is very important topic, which is a relation between N and L. Next we have magnetic quantum number. Right students, we have initially we have described about N, then we have described about L. Now we are describing about magnetic quantum number, which is represented as M. N, L and M, right. So okay, now we will describe about third quantum number, which is magnetic quantum number represented as M. हमने N को डिस्कस किया. अब
अबाउट शेल्स, हमने एल को डिस्क्राइब किया अबाउट सब शेल्स. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एम विच टेल अस अबाउट द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल और शेप ऑफ ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन्स शेल में हो सकते हैं, फिर उस शेल के किसी सब शेल में होंगे, उस सब शेल की किसी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन या उस सब शेल की किसी स्पेसिफिक शेप्स में एग्जिस्ट करेंगे. इन शेप्स को, इन ओरिएंटेशन को हम नेक्स्ट पेज पर डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट आर द ओरिएंटेशन, व्हाट इट मीन बाय ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स. नाउ अगेन द important term is how we define the values of m. M may be equal to 0, positive negative 1, positive negative 2, positive negative 3. remember जब आप positive negative 1 सपोज करेंगे तो positive negative 1 means there are two numbers. जब आप positive negative 1, positive negative 2 इन दो नंबर को सपोज करेंगे तो have 4 numbers, right? 12 plus 1 is used to find total values of m. अब l की वैल्यू यहाँ पर सपोज करें, मतलब हम देखना ये चाह रहे हैं कि l की वैल्यू अगर हम 0 सपोज करते हैं ओवर हेयर, तो आप अपने l की वैल्यू 0 सपोज की, इसके अगेंस्ट सब शेल कौन सा है, s. अब जब आप ये l की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 12 + 1 दैट गिव्स के l की कितनी स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस हैं, राइट. 12 + 1 इज़ यूज टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ m. हाउ, लाइक दिस. नाउ रिलेशन बिटवीन L एंड M. जब आपने L को 0 सपोज किया, L इक्वल टू 0 एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसके अगेंस्ट M की वैल्यू भी 0 है. दैट 0 इज़ बेसिकली अ नंबर एंड वन नंबर मीन्स वन ओरिएंटेशन along x, y or z, right, or in any of these axis, along any of these axes. Now if we say that L equal to 1, अब L equal to 1 का मतलब क्या है कि दिस इज़ p ऑर्बिटल. इस p ऑर्बिटल की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करते हैं 2 × 12 + 1, जब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे L की 1, 2 × 1 means 2 + 1 3, we have an answer of 3 means इसके अगेंस्ट जो M की वैल्यू है 0, पॉजिटिव नेगेटिव 1, यहाँ पे कितने नंबर आ गए हैं, बेसिकली 3 नंबर्स. जब आप L की वैल्यू यहाँ सपोज करेंगे दैट आल्सो गिव यू 3, और अब आप M की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो M इक्वल टू 0, पॉजिटिव नेगेटिव 1, दैट ऑल देयर आर 3 नंबर्स. दैट 3 नंबर्स मीन यू हैव 3 ओरिएंटेशन अलॉन्ग x, y एंड z रिटन एज px, py एंड pz. नो L की वैल्यू आप 2 सपोज करते हैं, L इक्वल टू 2, इसके अगेंस्ट जो M की वैल्यू आएगी दैट इज़ 0, पॉजिटिव नेगेटिव 1, पॉजिटिव नेगेटिव 2. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, देयर 5 नंबर्स, तो देयर 5 orientation of d ऑर्बिटल. वाई d? बिकॉज L, जब हम L को 2 सपोज करते हैं, जब हमने L को 2 सपोज किया दैट 2 मीन्स वी हैव d ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू एजीमुथल क्वांटम नंबर, राइट. देन हम L को हम सपोज करते हैं 3, इसके अगेंस्ट जो M की वैल्यू है M इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव नेगेटिव 1, पॉजिटिव नेगेटिव 2 एंड पॉजिटिव नेगेटिव 3. वी हैव 7 नंबर्स ओवर देयर. जब आप N को, L को, M को आपस में रिलेट करेंगे तो आपको उनका जो फर्स्ट पॉइंट है, मतलब वैल्यूज़ जो हैं वो आपको सिर्फ याद रखनी है. जब वैल्यूज़ आपको याद होंगी तो यू कैन हैव योर सोल्यूशन. सो जब आपने L की वैल्यू 3 सपोज की, M इक्वल टू 0, पॉजिटिव नेगेटिव 1, पॉजिटिव नेगेटिव 7 नंबर्स, तो इट्स 7 नंबर्स मीन इट हैव 7 ओरिएंटेशन एंड 7 ओरिएंटेशन ऑफ व्हाट, F ऑर्बिटल, right. So now we have some thing that we left over there. What is mean by orientations of orbitals? अब orientations of orbitals और shape of orbital का meaning क्या है, इसको मैं यहाँ पर sketch कर रहा हूँ. How to sketch these orientation? Like if we want to draw S is spherical. Doesn't matter वो 1s है, 2s है, 3s है, 4s है. S को आप ऑलवेज इस तरह से शो करोगे. अगर आपने थोड़ा सा बड़ा शो किया इसको, या आपने इसको थोड़ा सा और बड़ा शो कर दिया,
मे बी दिस इज़ 1s, दिस इज़ 2s एंड दिस इज़ 3s, लेकिन तमाम के तमाम केसेस में s को आपने स्फेरिकली ही शो करना है. नेक्स्ट वी हैव p ऑर्बिटल. इसको हमने बताया कि p की 3 शेप्स हैं अलॉन्ग. नाउ we will describe the shapes of p orbital. Have 3 types of orientation. इस इन 3 orientation को हम along x, y and z show करेंगे. Like this is your 3 axis. पहले axis draw कर लें. And this pattern, so this is x, this is y and this is z. This is x prime, this is z prime, this is y prime. So अगर आपने इसको x axis के along show किया like this is called as px. p drawn against along x axis, तो px. next इसको आप ऐसे स्केच करें along same axis, y axis, y prime, then we have z and z prime. So अगर आप इसी शेप को along y axis ड्रॉ करेंगे, that is against the shape of p, but that p is drawn against y axis, right? And the last one is shape of the last p orbital, which is like this above the plane, x prime, x, y prime, z prime and z. अगर आप इसको along z axis शो करेंगे, that means कि it is against p, but that p is shown against along that axis, px, py and pz, right? इसी तरह से कुछ शेप्स बनेंगी d ऑर्बिटल्स की. सो हम नेक्स्ट केस में d ऑर्बिटल्स को स्केच करेंगे. d orbitals, we know that it has 5 orientations, right? Now these 5 orientations are designated as dxy, dyz, zx, x square minus y square and dz square. The first 3 are in between the axis and last 2 are on the axis. What does it means? Now draw again all axis, x, x prime, y, y prime and z, z prime. हम पहले ड्रॉ करेंगे d x y. Now consider these two things, x y, x y, x y, right? This is also x y, this is also x y. आपको ये चीज़ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? ये मैंने आपको सिर्फ एक बात एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया कि विच आर द बाउंड्रीज ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस. लाइक एक्स वाई इन बिटवीन द एक्सिस, ये भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई. तो एक शेप हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और एक शेप हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. दीज टू लूप्स आर एग्जिस्टिंग इन बिटवीन एक्स एंड वाई. नेक्स्ट is x, x prime, y, y prime, z and z prime. Now d, y, z, y, z. You need to understand about y, z. This is y and this is z. This is y and this is z. आपको ये लूप सिर्फ इस बाउंड्री में स्केच करना है, y and z. y and z. You careful about this triangle, because आप जब ये रूप इस तरफ लेके जाएंगे, this is x z, which is wrong, right? y and z, this is y and this is z. ये एक बाउंड्री लाइन है भी y z की है. इसको फिर इस तरह से शो करोगे,
these two are almost same but they are different with respect to y and z orientation. यहाँ पर ये x y में है और यहाँ पर ये y z में है. Third one is अगेन उसी तरह से आपने एक्सिस शो किए, x y एक्सिस, y y प्राइम, z and z prime. Now we are going to draw about the zx, z and x. This is z, this is x. इससे previous diagram में over this we draw these loops in between y z. हमने यहाँ पे draw किया, आपने इसको y x और z में draw करना है. Like this y z में आ गया और सॉरी x z में, और ये भी x z, x and z, x and z, x and z. सो इसको हम s से भी शो कर सकते हैं इस तरह, बिकॉज जब हम z और x कर ये z. ओके, नाउ वी विल ड्रॉ डी x square minus y square. Remember these dx square minus y square is on the axis. So on the axis mean आपको दो loops draw करने हैं, right? एक x axis पे और एक y axis पे. ये हमारा x axis is our first loop and this is our second loop. These two loops are on the axis. We have already mentioned dx square minus y square on the axis and dz square also on the axis. Now the last one is dz square, right? This is x prime, y prime, and here we have z and z prime. So how to sketch dz square? Z square means it is right on the axis like this. So if you compare it with this one, pz, it is very much same as dz square. तो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम करते क्या हैं कि इसके सेंटर में एक सर्कल प्लेस करेंगे हम. दैट सर्कल ओनली टू डिफ्रेंशिएट dz square from pz, राइट. तो दीज आर 5 ओरिएंटेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स. हम यहाँ पर f को स्केच नहीं करेंगे बिकॉज f इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. इट्स डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ इन 2 डायमेंशन ओवर ऑन द पेज, राइट. Next we have our last quantum number, which is spin quantum number, represented as s. We already know about that electron revolve around the nucleus, right? And there is some other studies that shows that electron can also revolve its own axis. So electron की दो तरह की motions हैं. एक तो वो nucleus के surrounding में revolve कर रहा है और second it is also revolving on its own axis. तो इस axis को जो इस electron को जो कि वो अपनी axis के surrounding में rotate कर रहा है उसको हम spin की form में show करेंगे, ठीक है. हमने मेंशन किया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस एज वेल एज इट्स ओन एक्सिस, आल्सो कॉल्ड एज सेल्फ रोटेशन, ठीक है. ये लेट्स सपोज दिस इज दैट्स सर्कल रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इट्स काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट इज clockwise rotation represented as plus half and anti-clockwise it is represented as minus half, right? Clockwise and anti-clockwise motion. So this was a spin quantum number. Only have two values, either that electron is on positive half or either it is on negative half, clockwise and anti-clockwise movement. Next we have electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ी हुई है, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है. फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. फिर हमने ये चीज़ मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए हमें वी नीड टू हेल्प प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. एक पॉइंट लिखा हुआ ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन ग्रेटर विल बी द एनर्जी. Greater the value of n means this n represents principal quantum number. Now already know that principal quantum number is represented by n.
अब आपने इसको आल्सो रिप्रेजेंट अबाउट नंबर ऑफ़ शेल्स। तो नंबर ऑफ़ शेल जितना ज़्यादा होंगे, n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, जितना n का नंबर ज़्यादा होगा उस शेल की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। सो हियर इज़ द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। s की एनर्जी लोवेस्ट है और f की एनर्जी जो हाईएस्ट है, राइट। नाउ फॉलो दिस डायग्राम। हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जस्ट फॉलो दिस डायग्राम। मैं यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ। वी नो दैट n equal to 1, n equal to 2, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, 4, 5, 6 एंड 7 शेल। फिर आपको मालूम है कि अगर आपके पास n की वैल्यू 1 है, इट ओनली कंटेन वन सब शेल विच इज़ 1s, सेकेंड शेल कंटेन 2s and 2p, third shell contain 3s and 3p. Let me fix that page. Okay, now it's much easier. 3s, 3p and 3d. 4 contain 4s, 4p, 4d and 4f. Similarly 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d and 7f। ये मैं आपको एक ऑर्डर हाउ टू अरेंज सब शेल्स इन इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स, इसको एक डायग्राम को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह एक काफ़ी ईजी और कम्प्रीहेंसिव डायग्राम है। नाउ अब आपने इस डायग्राम को डायगोनल पोजीशन में कट करना है। डायगोनल पोजीशन में लाइक वी कटिंग दिस 1s, then 2s, then 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s। ये आप एरो की डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। 4f, 5d, 6p, 7s, 5p, 6d, 7p, 6f, 7d and at last we have 7f। जिस नंबरिंग में आपने इन ऑर्बिटल्स को कट किया, जस्ट राइट दिस। लाइक सबसे पहले हमने 1s कट किया, दैट इज़ ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। उसके बाद हमने 2s कट किया, 2s। उसके बाद हमने 2p, देन 3s, देन वी हैव 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p एंड सो ऑन। सो जो लीस्ट एनर्जी का है, अब इसमें देख लें कि n की वैल्यू कहाँ पर लोवेस्ट आ रही है। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n 1, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n। जो फर्स्ट नंबर इनिशियली लिखा होता है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ n, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n। जो सबसे हाईएस्ट है इन दिस केस उसकी एनर्जी भी हाईएस्ट होगी। सो 6p इज़ ऑफ हाईएस्ट एनर्जी एंड 1s इज़ ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। तो हम इसमें ये साइन प्लेस करेंगे। सो n वैल्यू ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द एनर्जी ऑफ सब शेल्स, राइट। इसको आप लास्ट तक 7f तक लेंगे। 7f इज़ ऑफ हाईएस्ट एनर्जी लेवल, राइट। सो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स पुट करें। वी ऑलरेडी नो दैट s कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p मैक्सिमम कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन, d मैक्सिमम कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड f मैक्सिमम कंटेन 14 इलेक्ट्रॉन। सो आपने पहले s को कम्प्लीटली फिल करना है, फिर p कम्प्लीटली फिल करना है, फिर d कम्प्लीटली फिल करना है, देन आप f की तरफ मूव करोगे। ऐसा नहीं करना कि s में 1 इलेक्ट्रॉन है फिर p में आपने इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए। s और लोवेस्ट एनर्जी सब शेल्स पहले आपने कम्प्लीटली फिल करना है, देन आपने इलेक्ट्रॉन की इंटरिंग जो है वो नेक्स्ट सब शेल में करनी है, राइट। Okay students, that was all about electronic configuration, quantum numbers. If you have any kind of confusion, do not hesitate to contact me on my WhatsApp number. Thank you very much. Stay at home. Allah Hafiz.